ladies and gentlemen, unsurprisingly, the most important decision of the I.N.D.I.A. alliance, most amusingly, is to start targeting the media. They are plagued, you see, by the emergency mindset, led as they are by an emergency party. Yes, the Congress is, after all, the emergency party of India. Now they are starting off by grandly declaring that they will boycott 14 anchors, yours truly included. They think it's a great move. They think this will put pressure on journalists to stop questioning things like the declared intent of many of their leaders to eliminate Hinduism, to eliminate and annihilate Sanatan Dharma and uproot Hindu traditions from the soil of our great nation. Well, it won't. It won't. These childish attempts have absolutely no impact in real terms. As you all know, when I questioned Sonia Gandhi, Antonia de Maino, on her silence on Palghar, they asked their minions, she asked her minions to attempt an acid attack on me and my wife, who's a very senior journalist with our network. It had no impact on us. When we questioned their inaction in the SSR case and brought out the deep mystery of Disha Salian's death and the Bollywood drugs angle, they put cases against all our journalists, interrogated us for hundreds of hours, tortured our employees, and put a fake case on me, which has now been proven wrong, and they made the extortion ring of their Mumbai cops arrest me and put me in jail, but I came out free, and I came out strong, and I came out proven correct, and they, these cowards, this extortion, threat, blackmail and boycott alliance, they ended up exposed before the people of India. Who cares about their threats? Water of a duck's back, I say, their threats have no impact. Rahul Gandhi celebrated when the Pakistani government issued a statement against me. He was celebrating with the Pakistanis. He immediately told 5 of his leaders to follow the Pakistan government and the Imran government and ISI's line to target me via press conference. They even joined hands with the ISI to target us. Nothing happened. The people of the country rejected Rahul Gandhi's childish attempt to target me and Republic. Rahul Gandhi should learn and understand. The people of this country, when Rahul Gandhi tried to target me, asked instead why the Vadra Congress and the Pakistani line are so similar. Ladies and gentlemen, when I questioned why an ancient Hindu temple was bulldozed in Rajasthan, their minion Pawan Khera filed a case in Udaipur against me, and even now is running helter-skelter, trying his best to get the Rajasthan police to act against me. It has no impact, it had no impact, it will have no impact, and it will have no impact because the courts see through this emergency Congi style of trying to muscle the media. And also because the people of this country stand solidly with us, not Rahul Baba. Viewers, to teach me a lesson for exposing the severe intellectual inadequacies of Rahul Gandhi. A man who at the age of 54 says India is not a nation. Can you believe it? At 54 he says India is not a nation. Because they're angry with me, because I am the one who exposed his intellectual inadequacies. They put me in jail with murderers and rapists and underworld dons, and they tried their best to make me compromise. And I want to say to them today, as they bring out this laughable, ridiculous boycott threat, bring it on. The people of this country are with us, with me. You have Farooq Abdullah and Mehbooba Mufti on your side. We have the nation on our side. You can never fight Republic because the nation is with Republic and Republic does not compromise. We are not dying. I certainly am not dying to get these fake
stupid Manishankar Iyer types on our show. But we will, with as much energy and conviction, speak against negativity and speak for the nation. For we believe in our forces, our armed forces who Rahul Gandhi regularly mocks and makes fun of and attacks. And we want to know what secret deal Sonia Gandhi got her son to sign with the Chinese. And we know the real reason behind all of this, what they are doing, is because these are the questions that make them squirm and make them uneasy. But most of all, I want to ask those in the media who celebrated when I was targeted, when I was jailed, to consider the impact of their support for this emergency mindset with their prolonged silence. I am coming on television and speaking my mind. Do they have the guts to? Do they have the courage to? Do they have the editorial freedom to? To them I say that their silence is complicity and they must not be complicit in this political perversion. As for me, all my life, I have lived with threats. You know me, viewers. They are trying to target me today. All my life I have lived with attacks and abuse from people who consider me a threat to their plan to break the country and to divide the country. I am a threat to the Tukre gang and the urban Naxals and their friends in political parties. And I have fought and won, and I will fight and I will win again, because we are fighting for the country. But today the rest of the media, as this emergency mindset emerges again, the rest of the media, especially the Lutyens media, they need to develop a spine, or if necessary, grow one. For Republic has become India's most loved network, because we know how to hit back when it comes to our endless and indefatigable battle for the truth. And I call upon tonight all the right-thinking and nationalist Indians of India to rise as one against this attack on Hinduism. On the media who question those who carry out these attacks on Hinduism, and this attempt to vitiate the atmosphere before the general elections of 2024 by trying, by daring, by thinking of throwing an axe at the soul of our democracy itself. That is debate number 1 tonight, ladies and gentlemen. मीडिया जगत में और भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है कि रिपब्लिक का यह संपादक, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडिस्ट बनकर रह गया था और बीजेपी का लगातार प्रचार करने में लगा हुआ था, आखिर ये बीजेपी से सवाल क्यों करने लगा। इसके एक नहीं दोस्तों, 2 वीडियोस वायरल हो रहे हैं और जो विपक्ष के अंदर मासूम लोग हैं वो ये कहने लगे, देखिए 2014 से पहले इसके यही तेवर हुआ करते थे, आज उसके तेवर लौट रहे हैं। कोई हकीकत नहीं देखना चाहता, पर्दे के पीछे की क्या कहानी है कोई नहीं समझना चाहता है, क्योंकि हकीकत यह दोस्तों कि हमारा गोदी मीडिया रेडियो रवांडा से कम नहीं है। हमारा गोदी मीडिया 1940 के दशक में हिटलर के प्रचार तंत्र का जो मुखिया था गिबल्स, उससे कम नहीं है। आज मैं रिपब्लिक के संपादक की क्यों बात कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। मैं आपको एक एक करके 2 वीडियो दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप उनके इस वीडियो का ये करीब 20 सेकंड सुने। इसके अंदर ये संपादक ये कह रहा है कि जिस तरह से निर्भया आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त की कांग्रेस सरकार से इस्तीफा मांगा था, वो बदल क्यों गई। मणिपुर को लेकर दरअसल सवाल किया जा रहा है। सुनिए वो क्या कहता है दोस्तों। It is becoming apparent to me that this is not the same BJP that made such a loud noise over Nirbhaya at that point of time, saying that the government should resign at the center, and everybody appreciated the position of the BJP, but maybe, Charu, that was a different BJP. It is quite clear to me that this is a BJP which allows the National Commission of Women to ignore even a complaint on this issue for 34 days. और बात यहां नहीं रुकती। कुछ दिनों पहले एक और डिबेट सामने उभर कर आया था जिसमें यह व्यक्ति यह कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वॉट अबाउटरी नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी का शब्द है
वॉटअबाउटरी का मतलब यह है कि अगर मैं आप पर आरोप लगाऊं और अगर आप पलटकर मुझसे कहें मगर आपका क्या, यानी कि आप के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उल्टा आप मुझ पर उंगली उठाने लगेंगे, इससे कहते हैं वॉटअबाउटरी। दरअसल हुआ क्या है, जैसे ही मणिपुर का मामला सामने उभर कर आया है, संसद के अंदर चाहे पीयूष गोयल हो, स्मृति ईरानी हो, तमाम जो इनके मंत्री हैं, अमित शाह भी हो, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग यही कह रहे हैं कि भाई मणिपुर पर तो डिबेट होगी मगर राजस्थान पर क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ पर क्यों नहीं, बंगाल पर क्यों नहीं? तो इसे कहते हैं वॉटअबाउटरी। और इसी का जिक्र रिपब्लिक के संपादक ने अपने कार्यक्रम में किया था। सुनिए इसने क्या कहा था। Nobody should be above question in this country. Viewers, at the same time, the government should stop this whataboutery. तो इन दोनों वीडियो से खलबली मची हुई है कि क्या गोदी मीडिया सुधर रहा है? आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि मेरे पास खबर यह है कि एक संपादक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से एक अरसे से कोशिश कर रहा है मिलने की, एक अरसे से कोशिश कर रहा है मिलने की। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों कि धीरे धीरे जो तमाम राज्य हैं उन पर विपक्ष की सरकारें बैठ रही हैं। साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। अब अगर इन राज्यों में 3 में से 2 राज्यों में कांग्रेस है, अगर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जीत गई तो इसका अर्थ क्या होगा? धीरे धीरे राज्यों में विपक्ष का दबदबा बढ़ता जाएगा, यानी विपक्षी गठबंधन इंडिया मजबूत होता जाएगा। और यहां पर सवाल खड़ा हुआ है सरकारी विज्ञापन का, सरकारी पैसे का। केंद्र सरकार से इन्हें जो पैसा मिलता है वो बहुत सीमित है, इनको जरूरत पड़ती है राज्य सरकारों से भी पैसे की। इसीलिए अब ये संपादक जाकर नतमस्तक हो रहे हैं राज्य सरकारों के सामने। इसीलिए कभी कभार आप सुनते हैं कि ये लोग विपक्ष से सवाल कर लेते हैं, मगर इनकी असलियत क्या है कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। आज रिपब्लिक के उस संपादक ने जो महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल उठाए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी और जब उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर निशाना साधा गया था। याद कीजिए दोस्तों, यह वही संपादक था जिसने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया था, उसमें उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कहां गया वो मामला, बताइए ना। जिस समीर वानखेड़े ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के बारे में झूठी जानकारी रिपब्लिक के इस संपादक को लीक की थी, उसी समीर वानखेड़े के बारे में बाद में आरोप लगा कि वो शाहरुख खान से वसूली कर रहा था। उसे तो बाहर कर दिया गया है। बताइए, वो तो गिरफ्तारी से बच रहा है। तो ये सब क्या बतला रहा है दोस्तों कि ये लोग जो महिला सुरक्षा पर, ये जो पत्रकार महिला सुरक्षा पर आज की तारीख में आंसू बहा रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है महिला अस्मिता से। इन्हें सिर्फ अपने चैनल्स बचाने हैं, इन्हें सिर्फ सरकारी पैसा चाहिए, क्योंकि चैनल चलाने के लिए पैसे लगते हैं। इन संपादकों की क्या हकीकत है मैं आपको बतलाना चाहता हूं, क्योंकि इसी मंच पर मैंने आपको भारत 24 नाम के एक चैनल के मालिक का बयान सुनाया था। यह व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में। और यह बयान कब दिया जा रहा था? जब एबीपी न्यूज के एक पत्रकार जो हैं वो भारत 24 में शामिल हुई थी। वो पत्रकार जो जब प्रधानमंत्री से जिन्होंने इंटरव्यू किया था और कहा था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, जब वो भारत 24 में शामिल हुई तो उनकी मौजूदगी में जगदीश चंद्रा ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, खबरों के साथ हैं, जनता के साथ हैं। बाय एंड लार्ज वी आर फेयर एंड इंडिपेंडेंट, but intelligent support to the popular ruling government. We don't feel shy in this. और क्यों नहीं, आज देश का प्रधानमंत्री अगर ग्लोबल लीडर बना है, आज नरेंद्र मोदी अगर 64% या 76% के साथ वर्ल्ड में टॉप पॉपुलरिटी ग्राफ में अगर दिखता है, आज अमित शाह अगर 370 करके और कश्मीर के माहौल को बदल देते हैं, तो कैसे इग्नोर करें? मीडिया के इन लोगों की हालत क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इंडिया टुडे का एक समारोह चल रहा होता है, प्रधानमंत्री सामने होते हैं, साथ में होते हैं इंडिया टुडे के संस्थापक अरुण पुरी।
अरुण पुरी उनके सामने लगभग गिड़गिड़ाने लगते हैं। ये तक कहते हैं, प्रधानमंत्री जी आप कहेंगे कि मैं आपकी दुकान क्यों चलाऊं। मैं चाहूंगा आप उस पूरे संवाद को सुने, वो आवाज सुने, जिससे आपको पता चलेगा कि ये मीडिया किस तरह से सत्ता के सामने नतमस्तक है। सुनिए क्या क्या कहा था अरुण पुरी ने प्रधानमंत्री के सामने। सर, आप बुरा न मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। मीडिया आपकी सरकार से बड़ी परेशान है। हाँ, आपकी सरकार की से कोई जानकारी लीक नहीं होती जैसे पहले सरकारों से होती थी। किसी को पता नहीं होता कि कौन आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेगा। रीशफल का तो भूल ही जाओ, और राज्य में कौन बनेगा मुख्यमंत्री जब मौका आता है कोई खबर नहीं। गुस्ताखी माफ, मैं ये भी सोचा शायद आपका इसका ये जवाब क्या देंगे। मैं बोलूं, आप बोलेंगे अरुण भाई मैं आपकी दुकान क्यों चलाऊं। इसके बाद तमाम जो लोग वहां मौजूद होते हैं वो हंस रहे होते हैं। मतलब इतना भी लोग नहीं देखते कि एक इंडिया टुडे ग्रुप का संस्थापक ये कह रहा है कि मैं आपकी दुकान क्यों चलाऊं। ये स्तर हो गया इनका। आज की तारीख में ये लोग विपक्ष के खिलाफ किस तरह से सुपारी लेके चलते हैं उसकी मिसाल मैं आपको कल अपने कार्यक्रम में दे चुका हूं। एक एक करके फिर से बताना चाहता हूं। ये देखिए, वही रिपब्लिक जिसका संपादक शुरू में महिला सुरक्षा की दुहाई दे रहा था, बीजेपी को कटघरे में रखने की कोशिश कर रहा था, उसी का चैनल क्या चला रहा था। ये देखिए, सरकार गिराने आए थे, मोदी ने ठोक दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मोदी ने ठोक दिया। वो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, मगर मोदी ने ठोक दिया, उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बना दिया है। यहां पर एक प्रधानमंत्री पद की तौहीन है, महिमा मंडन नहीं है। मगर हां, यह बात अलग है कि इस देश का दिमाग इस कदर फिर गया है कि ठोक देने को लेकर भी लोग एक उपलब्धि समझते हैं। आगे देखिए साहब, नरेंद्र मोदी का पलटवार, गेम चेंजर या बैकफायर। इंडिया गठबंधन को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी तुलना आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से की थी, तब प्रधानमंत्री से सवाल करने के बजाय किस तरह के वाहियात और कचरा कार्यक्रम चलाए गए थे। फिर देखिए, राहुल ममता का इंडिया मोदी ने धो दिया, ठोक दिया। इंडिया वर्सेस इंडिया मुजाहिदीन, कौन सही है? इनकी यह हालत हो गई दोस्तों कि इंडिया को और इंडिया मुजाहिदीन को इन्होंने एक ही पंक्ति में रख दिया है। फिर देखिए, विपक्ष के इंडिया का सबसे बड़ा वार, इंडिया अंग्रेजों की कंपनी भी थी, इंडिया तो मुजाहिदीन में भी था। यह है रेडियो रवांडा की हकीकत दोस्तों। इसलिए अगर कभी कभार इनके संपादक सवाल पूछने लगते हैं तो ज्यादा उत्साहित मत होइए। हकीकत यह है कि इनका सिर्फ एक काम है, भाजपा के एजेंडे को आगे करना। मगर हां, इन्हें अपने चैनल्स बचाने हैं, इसीलिए कभी कभार इनमें नरमी आती है। मगर मुझे इंतजार होगा कि 2024 में अगर किसी चमत्कार से भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तब ये लोग क्या करने वाले हैं। तब इनमें से कई पत्रकार जो हिंदू धर्म के इतने बड़े समर्थक बताते हैं खुद को, हिंदू धर्म का, हिंदुत्व का झंडा लेके आगे चलते हैं, ये लोग क्या करने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इनमें से एक पत्रकार है जिनकी पत्नी और जिनका साला, ये लोग कई शैक्षणिक संस्थाएं चलाते हैं और उन्हें मदद किससे मिलती है आप भी जानते हैं। आप खुद जानते हैं कि तिहाड़ जेल गया था एक पत्रकार वसूली को लेकर। अगर वो गलती से सवाल पूछना शुरू कर दे तो उसे वापस तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है। यौन उत्पीड़न के बड़े आरोपों में एक बड़े चैनल का बड़ा संपादक फंसा हुआ है। ये तमाम तथ्य हैं, इसीलिए ये लोग बचते हैं। इसीलिए बीजेपी के हाथ में इनकी कमजोर नब्ज है, और जब कमजोर नब्ज रहेगी तो जाहिर सी बात है आप गिड़गिड़ाएंगे, आप नतमस्तक होंगे। आपको क्या लगता है, क्या इस सरकार ने मेरी किसी कमजोर नब्ज को तलाशने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की। इनकम टैक्स के जरिए
मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया गया, 13 करोड़ की टैक्स चोरी का केस लगाया गया, हम लड़े उसको लेकर और जीते। ईडी ने परेशान किया, बार बार किया, इनकी ट्रोल मशीनरी ने परेशान किया। मगर जाहिर सी बात है, जब मैंने अपना जीवन पूरी ईमानदारी से बिताया है और आगे भी बिताने की पूरी ख्वाहिश है, तो तुम कौन सी कमजोर नब्ज पकड़ पाओगे? कमजोर नब्ज तो उन्हीं लोगों की पकड़ोगे ना जिनके दामन में दाग है। मैं तो इसी अंदाज में आप तक सच बोलते रहूंगा, और जिस दिन मुझ में सच बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी, तब न्यूज चैनल बंद कर दूंगा। क्या जरूरत है फिर पत्रकार बने रहने की? क्योंकि प्रोपेगेंडिस्ट बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।